as we have solved the problem in option A, now we are going to proceed further when b is not equal to 0. So here we can see that t of x plus t of x equal to mx plus b, here it is given. Okay, so we have the function t of x equal to mx plus b, so which is given here for all xy belongs to real. So this is the transformation. So we have to prove that if when b is not equal to 0, so which property is violated when the transformation is not linear. So we are going to further check the first transformation properties of distributive law to check the linear transformation. So here we have seen that t of x plus y, this is the first property. So if we verify this property t of x plus y equal to mf, this should be checking as m of x plus y plus b. This is x plus y is checking the transformation. So this can be further expanded as mx plus my plus b. Okay, so in other words we can see that the value for tx is equal to this and the value for ty equal to this. So when we adding t of x plus t of y, it gives mx, my plus 2b, b plus b is equal to 2b. Hence we know that when we verifying this to this according to this, so here occurs 2b and here is b. So here we can see that b is not equal to 2b. So hence according to this is not as satisfied, b is not equal to 2b. Left hand side is not equal to right hand side. Therefore we can say that the transformation is not linear. Once again going to repeat this in Urdu. हमें कहा गया था find the property of linear transformation that is violated when p is not equal to 0. देखिए हमें linear transformation के लिए क्या करना होता है, सिंपली दो properties चेक करनी होती है. एक होती है जो हमारी distributive property, दूसरी होती है associative property. ठीक है, अब सबसे पहले हम distributive property को देखते हैं. ठीक है, distributive property हमारे पास कुछ इस तरह होती है. t of x plus t of y जो है ये होती है हमारे पास t of x plus t of y, t of x t of y के बराबर होती है, यानी t of x plus t of y के बराबर होती है. ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमें फंक्शन था t of x जो बराबर था mx plus b के बराबर था. ठीक है, हमें क्या करना है, t of x plus y को हमने मजीद एक्सपेंड किया, चेक किया. देखें अगर इसको x को उस वाली फॉर्मेट में रखना चाहे x plus y को, तो हमने देखा कि ये हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है. इसको मजीद अगर एक्सपेंड करेंगे mx plus my plus b ऐसे बनेगा कुछ. ठीक है, हम अगर tx की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो tx का फंक्शन ऐसा बनेगा, ty का फंक्शन ऐसा बनेगा. इन दोनों को ऐड करके चेक करते हैं हम, तो mx plus my 2b बन रहा है, ये b एक दूसरा, ये 2b बन रहा है. अब देखें 1b is not equal to 2b, यहाँ पे आ रहा है 1b, b 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2b. देखें लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, अब देखें b जब 0 नहीं है तो 2b आ रहा है, b की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये वायोलेट हो रही है. ठीक है, वायोलेट हो रही है, तो अगर इसको हम क्या कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही. ठीक है, अब हम देख रहे हैं जब now we are going to see that when b is equal to 0, inserting b equal to 0 in this equation we get t of x equal to mx. Okay, so for checking the linear transformation we are usually following the two steps. First we are going to check the distributive law of the linear transformation and the second associative law of the linear transformation. So we are verifying these two laws for checking the linear transformation. Okay, so we know that t of x plus y is equal to t of x plus t of y. This is distributive law where xy belongs to real numbers. Okay, so here we can expand this as t of x plus y, this function as m of x plus y. If x plus y, if x equal to x plus y, then it can further multiply that the independent variable similarly like m of x plus y, which is m of x plus m of y. So we are going to further expand this as t of x plus y equal to t of x plus t of y. So this is proof that it will be same
from the left hand side to the right hand side. This property is satisfying according to distribution of these parameters. So now here we are going to further check the associative law. For going to further verifying the associative law, we can further verify it through an example. If we multiply 2 multiplied by 5 and 2x is the same as 5 multiplied by 2 and 2x. So this is 10x, this is 10x. Simply this is the same as, right? So similarly in this case, t c of x, c is any constant number, t c of x equal to c t of x. Left hand side is equal to right hand side. So how t of cx is similarly according to this function as m of cx, and if it can further rewritten as c of mx is same. So here c of tx is equal to verifying. Okay, so now we can see that these both properties are verifying, satisfied. Left hand side is equal to right hand side. So both distributive and associative properties are verified. In this case, we can say that T is linear transformation because both properties are satisfied. This property and this properties are satisfied, so hence it is the linear transformation at b equal to 0. Once again going to explain this in Urdu. अच्छा, जिस तरह हमें बताया गया था कि हमें जो है एक सेम डायमेंशन में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन mx प्लस b की हो रही है, हमें क्या करना है कि सिंपली देखना है कि t जो है लीनियर है जब b 0 है हमारे पास. ठीक है, हमने क्या किया, b की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखना चाहे तो हमारे पास क्या बना, t of x इक्वल टू mx बना. ठीक है, अब देखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने सिर्फ दो चीज़ें चेक करनी होती हैं. एक चेक करना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी जो है हमें चेक करनी होती है कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई हो रही है. ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने सिंपली क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हमने चेक करने चाहिए. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह होती है, टी ऑफ एक्स प्लस वाई. ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए आपके पास टी ऑफ एक्स के प्लस टी ऑफ वाई के बराबर होनी चाहिए, जितने भी एक्स वाई बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में. ठीक है, तो हमने इसको मज़ीद एक्सपेंड किया, इसको हमने ओपन किया इसमें इस फॉर्मेट में. तो एम ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको मज़ीद हम देखना चाहें तो ये कुछ बन रहा है हमारे पास एम एक्स प्लस एम वाई जब बी हमारे पास 0 है. ठीक है, अब देखें टी ऑफ एक्स प्लस वाई जो बराबर होता है टी ऑफ एक्स के प्लस टी ऑफ वाई के बराबर होता है. तो सिंपली ये टी ऑफ एक्स है, टी ऑफ वाई है. ठीक है, एम एक्स है जो है आपके टी ऑफ एक्स बन रहा है और एम वाई जो है आपका टी ऑफ वाई बन रहा है. ठीक है, अब देखें ये तो आपका वेरीफाई हो चुका है. अब देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली देखें, कोई भी हम एग्जांपल देखना चाहें, 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से फिर x से कराएं, ये सेम होता है. अगर 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से फिर x से कराएं, ठीक है, तो आंसर आपका सेम होता है. ठीक है, इसी तरह इसी को देखें, टी ऑफ सी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कराएं, सी ऑफ इसको इस तरह मल्टीप्लाई कराएं, ये सेम आएगा, सी ऑफ टी ऑफ एक्स के बराबर आएगा. वो कैसे आएगा, देखें टी ऑफ सी ऑफ एक्स किसके बराबर आता है, एम ऑफ सी एक्स के बराबर है. सी कोई भी कांस्टेंट नंबर है हमारे पास. ठीक है, या सी ऑफ एम एक्स के बराबर आ जाए, सी ऑफ सी को पहले एम एक्स को मल्टीप्लाई करें फिर सी से मल्टीप्लाई कराएं तो फिर भी आपका सी ऑफ टी ऑफ एक्स के बराबर आएगा. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों प्रॉपर्टीज आपकी वेरीफाई हो रही हैं. ठीक है, तो आप इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे, दैट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. Dear students, so we know that identity matrix, we know about the identity matrix. So you can, for general term, we have here represent n is any positive integer. Okay, so suppose if we can define the identity matrix of order 2, we can write simply 1 0 0 1. If we can define the identity matrix of order 3, we can simply define as 1 0 0 0 1 0 0 0 1.
if we want to define the identity matrix of order 4, so we can further expand this as 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. This is the simply order of I4, I3 and I2. Please note that here this is E1, E2. Here this is E1, E2, E3. Here it is easy E1, E2, E3, E4. So for a general term, we can expand this up to En, up to the order n, where E is any vector. So if we define the position of a vector in a general term, in a long order of n order, so simply we can indicate any column of the identity matrix through J as this is E of J, Ej, which is equal to 0 0 1 0. So please note that here the jth position is non-zero. We can further simply say that in a given vector where the position is non-zero, you can name that this is the jth position of the column where the element is non-zero. So similarly, now we are going to further analyze these system through an example. Suppose here the column of I2 which are equal to 1 0 0 1, and E1 is given as 1 0 and E2 is given as 0 1. This is E1, this is E2. Suppose T is a linear transformation from order 2 to order 3, transforming the matrix from order 2 to order 3, such that T of E1, this T of E1 is equal to 5 minus 7 minus 2, and this T of E2, which is equal to minus 380, with no additional information. There is just no additional information. Find a formula for the image of an arbitrary x in R2. So we have to find a formula for the image of an arbitrary x in R2, as this is R2 already system. So it is converted from R2 to R3. So we are going to find the additional information, additional image of an arbitrary x, any arbitrary x which may come in that. So we can going to find the second transformation of order 2. Now I am going to explain this in Urdu again. आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है हमारे पास, उसको IN से डिनोट किया जाता है. n यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है. सपोज कर लें अगर ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखना चाहें तो वो बनेगी 1 0 0 1 के बराबर होगी. I3 ऑर्डर 3 की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखना चाहें वो कुछ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर बनेगी. आइडेंटिटी 4 की मैट्रिक्स देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है. ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये आपके नॉन जीरो होंगे, ठीक है. ये क्या है 0 0 1 0 1 0 1 1, कुछ इस तरह आपकी ओवरऑल बनेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है. अब देखें ये जो आपकी पोजीशंस हैं, ये वाली जो पोजीशंस है आपकी, इसको आप E1, E2, E3, E4, En अप टू En तक जो है नाम दे सकते हैं. देखें जिस तरह ये E1 है, ये E2 है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, ठीक है. इसमें तो ये जो है अप टू एक्सपेंड करना चाहें अप टू En लेवल तक, ठीक है. अगर देना चाहें तो उसको En लेवल तक डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ये जो डिनोटेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. देखिए कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी वेक्टर है हमारे पास 0 0 1 0, ये किसका है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, ठीक है. इसमें ये वाली जो जगह है इस पे हमारे पास एलिमेंट क्या है? नॉन जीरो है. तो आप सिंपली इस तरह आप डिनोट कर सकते हैं. जो जेथ पोजीशन है इसमें सपोज कर लें कि जे पोजीशन है, जेथ पोजीशन इज नॉन जीरो, ठीक है. यानी पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इज जे, ठीक है.
तो उसको आप नॉन जीरो भी कह सकते हो, ठीक है, सिंपली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम को मजीद एनालाइज करना चाहे अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसको मजीद हम एक एग्जांपल से थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखें, कोई कॉलम गिवन है I2 का 1001 का, ठीक है। I2 हमारे पास किसके बराबर होती है? 1001। उसके कॉलम क्या है? E1 है। ये दूसरा कॉलम E2 है। सपोज कर ले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से? और यानी ऑर्डर 2 से ऑर्डर 3 तक है, और 2 से R3 तक है, ठीक है। सच दैट जो T ऑफ E1 है, यानी ये वाला जो है वो इसके बराबर है, और ये वाला जो है ये इसके बराबर है। एलिमेंट्स क्या है? 5 - 7 - 3 8 0, ठीक है। 3 हो रही है, 3 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, विथ नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपसे कहा गया है कोई ऐसा फॉर्मूला फाइंड करें, द इमेज ऑफ एन आर्बिट्री एक्स इन R2, जो एक्स की इमेज होगी, आपने ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है। इमेज ऑफ एन आर्बिट्रेरी एक्स इन R2, जो R2 के अंदर आर्बिट्रेरी एक्स जो है उसकी आपने इमेज फाइंड करने के लिए कोई फार्मूला डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसको मजीद हम करते हैं। हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। देखें, सबसे पहले ये जो है आपके पास पॉइंट्स की लोकेशन है। सपोज कर लें E1 आपका आ रहा है यहाँ पे 1 0 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, E2 आपका आ रहा है y एक्सिस पे, ठीक है, या x2 एक्सिस पे, इसको x2 कह रहे हैं, ठीक है। ये x1 है, ये x2 है। ये E1 की पोजीशन है, ये E2 की पोजीशन है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकली, ठीक है, जो हमें प्रॉब्लम गिवन था उसको मजीद हम किस तरह समझ सकते हैं। देखें, अगर x बिलोंग्स करता है किससे? R2 से, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 से, तो x हमारे पास किस तरह बनेगा? x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x वेरिएबल को, x क्या है? आर्बिट्रेरी वेरिएबल को हम देखना चाहें, आर्बिट्रेरी x को देखना चाहें, ये मजीद इस तरह से है। x1 को आपसे 1 0 है, ठीक है, प्लस x2 आप मल्टीप्लाई कर दें 0 1 से, ठीक है। ये क्या है? आपकी आर्बिट्रेरी x है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। अगर इस आर्बिट्रेरी x2 और 2 की ट्रांसफॉर्मेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, P ऑफ x1 इसको मल्टीप्लाई करा दें इससे, प्लस P ऑफ x2 0 1, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें दो प्रॉपर्टीज पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है, वो इस तरह होती है। T ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर होनी चाहिए? T ऑफ x प्लस T ऑफ y के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह होती है। एक ये प्रॉपर्टी होती है, दूसरी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम देखना चाहें T ऑफ x1 जो हमारे पास E1 है, ठीक है, 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस T ऑफ x2 0 1 है, ठीक है, जो हमारे पास E2 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। इसको हम मजीद इस फॉर्मेट में देखना चाहें, ये किसके बराबर था? हमारे पास T ऑफ E1 के बराबर था, ठीक है, और ये किसके बराबर था? T ऑफ E2 के बराबर था, ठीक है, E2 के बराबर था। अब देखें, इसकी इमेज क्या है? ये है 5 - 7 2। इसकी इमेज क्या है? ये है -3 8 0। सिंपली मैंने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया है। 5x1 - 3x2 - 7x1 प्लस 8x2 2x1। हमारे पास कुछ इस तरह सिस्टम बना, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया? फार्मूला किसका आया? ये चीज ये आ गया हमारे पास। ये फार्मूला था हमारा आर्बिट्रेरी एक्स का, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड फार्मूला था, ठीक है। अब ये जनरल फार्मूला है, ठीक है, किसका? ऑर्डर 2 का है, जो आर्बिट्रेरी एक्स है, ठीक है, उसका है। अब इसके थ्रू पर अगर हम किसी की भी इमेज फाइंड करना चाहें, सपोज कर लें अगर हम जो है T ऑफ 1 2 करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी हमारे पास कुछ कॉलम है यहाँ पे, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे, तो इस फार्मूला के मुताबिक उसकी अगर इमेज करना चाहें, x1 क्या है हमारे पास? 5 × 1 - 3 × 2, ठीक है, और जो है -7 × 1 प्लस 8 × 2, ठीक है, प्लस 2 × 1,
इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 16, ये 2 का 2 आ गया। तो ये हमारे पास किस तरह बन गया 2 माइनस 7 प्लस 8, ये बनेगा 9, ये 2 बनेगा। तो ये हमारे पास कुछ इमेज ऐसे भी आनी चाहिए, ठीक है, ऐसी भी आ रही है, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि हमने जनरल फार्मूला क्या फाइंड किया, ये जनरल फार्मूला फाइंड किया, इसके अंदर हम किसी भी जो है वेक्टर की अगर इमेज फाइंड करना चाहें तो हमारे पास कुछ सिस्टम इस तरह आएगा, ठीक है। Okay, the matrix of linear transformation. Let the transformation is in from Rn to Rn. This is what? This is the order of the matrix from n dimensions to m dimensions. Be a linear transformation. Then there exists a unique matrix A such that T of x equal to Ax. Now here it says if we transform the matrix from one order to another order, or if we transforming the matrix system, then there exists a unique matrix. It means a simple one matrix which is such that this transformation is equal to the matrix multiplied by its Ax. X is any arbitrary variable, okay. In fact, A is m by n matrix. This is the order of the matrix whose jth column is the vector TEQ. Any column of the matrix is denoted by T of EQ, where EJ is the jth column of the identity matrix in Rn, in the system of transformed system. So overall matrix we can denote like this. This is the standard form of the matrix A equal to T of E1, T of E2, T of En. So please note the remark. The matrix A such that T of x is equal to A of x is called the transformation for T. Transformation for T is same as the Ax. Ax is the any A matrix and multiply by x. So let's consider here. This is the transformation from third dimension to third dimension, same dimension. So here C1 is equal to 1 0 0, C2 equal to 0 1 0, and E3 equal to this is E1 E2 E3. E1 equal to this 1 0 0, E2 equal to 0 1 0, E3 equal to 0 0 1, and J3 is 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1. Okay, this is the identity matrix of J3 order 3. So here we represent J3 is same as this. So T of E1 equal to 1 2 3, and this is the transformation of E1 1 2 3. This is the transformation of E2 0 5 7, and this is the transformation of E3. So overall matrix transformation is denoted as 1 2 3 0 5 7 0 0 1. So T of x equal to x. This is known as transformation of x. So in this regard, if we want to find the image of the first image of the column, we can simply if we want to note the image of this 1 to 1, so simply we can multiply A and this x. Okay, so simply transformation is equal to this is A and this is x. Once again I am going to repeat this in Urdu. देखें, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एन ऑर्डर से एम ऑर्डर पे, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ पे एक यूनिक मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट करेगी, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो एक मैट्रिक्स से होती है, ठीक है, जिसको हम ए का नाम दे रहे हैं। और उस ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह हम डिनोट करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ए की होगी एक्स टाइम। एक्स क्या है? यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको मजीद हम इस तरह समझते हैं, A is m by n matrix whose जिसका jth कॉलम इज द वेक्टर TEQ, यानी जो कॉलम्स हैं, ठीक है, उसको मजीद एक वेक्टर का नाम दिया गया है, ठीक है।
अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम्स हो सकते हैं जो ओरिजिनल मैट्रिक्स Rn है, ठीक है। तो अब देखें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ए का क्या डिनोट करता है, ये होता है बेसिकली, ये उसके कॉलम्स चले जाते हैं इस तरह, ये उसके कॉलम्स होते हैं, इस तरह कॉलम्स होते हैं, ये उसके कॉलम्स होते हैं, ये T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, उसके नीचे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, तो मैट्रिक्स ए उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टी, जो टी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको ए एक्स, टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, इस तरह से हम नजर करेंगे इसको। देखिए एक मिसाल मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे R3 से लेके R3 तक हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। E1 हमारे पास है 100, E2 है हमारे पास 010, E3 क्या है 010, देखिए सेम है, ये क्या है आपका E1 है, ये E2 है, ये E3 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, E1 की ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, सपोज कर ले 1 2 3, E2 की ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है 057, टी ऑफ E3 की ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है 001, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओवरऑल पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है, तीनों वेक्टर्स को कंबाइन किया है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी की हम कोई पर्टिकुलरली इमेज फाइंड करना चाहें, सपोज कर लें यहाँ पे मैंने कौन सी इमेज फाइंड करना चाहिए, 1 2 1 की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मैट्रिक्स रखी वही वाली जो हमने ली थी, इसको मल्टीप्लाई करा दिया 1 to 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टी आएगी, ठीक है। अच्छा, कोई भी इसमें जो है सारे हमने वेरिएबल्स चेक किए हैं, ठीक है, आप चेक कीजिएगा इसको मजीद। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, कहा गया है assume that T is a linear transformation, find the standard matrix of T, क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ T फाइंड करना है हमें, ठीक है। और हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है R2 से लेके R3 पे, E1 क्या है 3131, E2 क्या है -5200, ठीक है। E1 10 है, ये 01 है, ठीक है। तो और दूसरे में क्या कहा गया है, R3 है R4 तक हो रही है, E1 हमारे पास 14 है, E2 हमारे पास -29 है, और E3 हमारे पास 3 -8 है, ठीक है। ये क्या है आपके कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑर्डर 3 by 3। सो सबसे पहले हम ऑर्डर 2 को देखते हैं, तो I2 को हम सबसे पहले लिखना चाहेंगे, इस तरह होती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को देखना चाहें, ठीक है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, दैट इज 3 1 3 1 और -5 2 0 0, ठीक है। ये है ऑर्डर स्टैंडर्ड ऑफ मैट्रिक्स, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ये क्या है टी ऑफ E1 है, ये क्या है आपका टी ऑफ E2 है, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम फार्मूला फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फार्मूला किस तरह से करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, x1 से लेके x2 तक, तो हमारे पास कैसे कुछ बनेगा, दैट इज 3x1 -5x2 x1 plus 2x2 3x1 उसके बाद x2, ये भी x1 है। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूला आ चुका है, ठीक है। इसका ये पहले का फार्मूला है, ठीक है।
तो ये हमारे पास, उसको हम दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे, दैट इज एक्स। एक्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अच्छा, एक मरतबा फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। आपसे कहा गया है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, टी की, जो कि आपने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड करनी है टी के लिए, ठीक है। ये चीज़ फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टी ऑफ ई वन क्या है, 3131, दैट इज 3131, ठीक है। टी ऑफ ई टू क्या है, -5200, -5200, ठीक है। और ई वन क्या है हमारे पास, ये है 10, ई टू क्या है हमारे पास 01, दोनों क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें डायरेक्टली कहा क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है और फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने सिंपली जो हमें गिवन था डेटा, उसको हमने पुट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके एक्स निकाला, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हम जो है 3 को भी देखेंगे। तो जो 2 में क्या क्या आ गया है, R3 से R4, यहाँ R2 से R4 थी, यहाँ R3 से R4 है। E1 है 14, E2 है -29, E3 है 3 - 8, ठीक है। ये इन तीनों की जो है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। तो सिंपली हमने क्या करना क्या है, सिंपली हम वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं जो कि हम पहले करते हैं, पहले में की है, तो इसमें मजीद वही करेंगे। दूसरा में है -29, तीसरा में हमारे पास 3 - 8। ऐसा कुछ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ रहा है, ठीक है। और देखिए ये क्या है आपके पास, टी ऑफ E1 है, ये क्या है, टी ऑफ E2 है, ये क्या है, टी ऑफ E3 है, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है। सिंपली हमने फार्मूला जो फाइंड करना है वो सिंपली हमें जो है, अब हमने क्या करना है इसमें, x1 x2 2D फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। सिंपली क्या है, देखिए हमने आर्बिट्ररी वेरिएबल जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। सेम स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो ये करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे, ये टोटल आपका जो है सिंपली अगर इस तरह रखना चाहें तब भी आपकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और बल्कि ये है 3x3 तक है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3 है, ठीक है। तो सिंपली हम किस तरह लिखना चाहेंगे, x1 -2x2 + 3x3, उसके बाद 4x1 है + 9x3 -8x3। ऐसा कुछ फार्मूला हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फाइंड करने की कोशिश की है, ठीक है। एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हमें कहा गया है कि
आपने करना है R2 की R2 से ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, 2 डायमेंशन ही है, ठीक है। डायमेंशन क्या है, 2 है। अगर 2 डायमेंशन है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कुछ ऐसी होनी चाहिए 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, दैट रोटेट्स ईच पॉइंट इन R2, रोटेट कर रही है, ठीक है, अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल साई विथ काउंटर क्लॉकवाइज फॉर पॉजिटिव एंगल, ठीक है। वी कुड शो दैट ज्योमेट्रिकली दैट सच अ ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखनी है, फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ AX। अब इसको समझने के लिए हमने थोड़ा जो है ज्योमेट्रिकली एनालिसिस देखनी होगी। देखें, ये क्या है हमारे पास, कोई भी सपोज कर लेंगे, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। अब देखें, ये क्या है, पॉइंट सपोज कर लीजिए यहाँ पे 1, ठीक है, और x जो है 0 है, याद नहीं, यहाँ पॉइंट क्या है 1 0, और यहाँ पे सपोज कर लें, ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कोई नाम दे दें, सपोज कर लें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे दैट इज 0 1, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि दैट रोटेट्स ईच पॉइंट विथ एन एंगल R2, यानी इसमें कुछ रोटेशन भी हो रही है। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक जो है लाइन जा रही है, इसकी पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास एक पॉइंट है दैट इज सपोज कर लें उसकी कुछ डायरेक्शन यही है, ठीक है, इस तरह है, ठीक है। अब देखें, थोड़ा सर्कुलर फंक्शन को हम जिस तरह एनालाइज करना चाहेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पे देखें, इस तरह अगर कुछ फाइंड करना चाहें, ठीक है। अब देखें, ये कुछ आपकी राइट एंगल ट्रायंगल टाइप बन रही है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कोई एंगल है दैट इज नोन एज साई, यहाँ पे कोई एंगल है दैट इज नोन एज साई, ठीक है। ये एंगल है, रोटेशन एंगल है, एंगल रोटेट कर रही है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या बन रहा है, देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है, और हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से अगर यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे x हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है, 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो फार्मूला बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ पे कुछ एंगल जो हमारी बन रही है वो कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको हम y एक्सिस के थ्रू देखना चाहें, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू साइन, यहाँ पे जो साइन का कोऑर्डिनेट्स बनेगा, ठीक है, दैट इज सिमिलरली लाइक p/1 यानी y/1 इक्वल टू साइन साई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स बने आपके पास, यानी P/E1 की अगर बात करें तो दैट इज हमारे पास क्या बना, cos थीटा cos साई अपॉन साइन साई, ठीक है। सिमिलरली अब इस पॉइंट पे देखें, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट में यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रही है, ठीक है, एंगल बन रही है, और यहाँ पे भी जरूर कुछ ना कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे। सपोज कर लें दैट इज आपका जो है कोई ना कोई आपका एक्सिस है, ठीक है, और जो इस एक्सिस पे आपके पास जो पॉइंट्स रोटेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे दैट इज नोन एज, यहाँ पे आएगा माइनस साइन साई और कॉस साई, ठीक है। सिमिलरली इसको आप P/E2 का नाम दे दें, तो आपकी स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्स बनती है वो कुछ इस तरह बनती है।
ये आपका क्या हुआ टी ऑफ E1, ये आपका क्या है टी ऑफ E2, सेम है जस्ट लाइक, ठीक है। एक मतलब फिर से डिफाइन करना चाहूंगा इसको। देखें, हमें कहा गया है R2 की टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, 2 डायमेंशन की ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, जिसमें रोटेशन हो रही है किसकी, R2 की, एक पॉइंट पे, ठीक है, थ्रू ओरिजिन एन एंगल साई, यानी ये जो एंगल है वो साई के थ्रू ओरिजिन कर रहा है, और ये जो रोटेशन है दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मींस फॉर ईच पॉजिटिव एंगल। आपको क्या करना है, वी कुड शो दैट ज्योमेट्रिकली दैट सच अ ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर। यहाँ पे आपने शो करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, और आपने इसका जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है, दैट इज जो कि ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखें इसको हमने कैसे किया है। सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन पे हमने क्या किया, यहाँ पे आइडियल ये R2 थी, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो थ्रू इस 2 डायमेंशन है, तो यहाँ इसके ही मुताबिक होगी, ठीक है। तो हमने सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स जब चेक करते हैं, यहाँ पे आता है एक कोऑर्डिनेट 1 0, दैट इज टी ऑफ E1, ठीक है, और यहाँ पे आता है 2, दैट इज टी ऑफ E2, ठीक है। अब देखिए ये जो ऐसी फिगर बनी, अब देखिए यहाँ पे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल टाइप बन रही है, ठीक है, ये आपका बेस बन गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज हमने पढ़ा है कि दैट इज cos थीटा होता है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास x/1 है, दैट इज cos साई, एंगल अगर एंगल फाइंड करना चाहें तो दैट इज cos साई। अब यहाँ की बात करना चाहें, इसके अगर इस कोऑर्डिनेट्स की बात करना चाहें तो y/1 परपेंडिकुलर/1 बनेगा, परपेंडिकुलर/1, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है आपका, ये 1 है नीचे, तो आपके पास साइन y कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही ट्रिक इस्तेमाल की है, ये हमारे पास बेस बन रहा है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज बन रहा है, उसके बाद परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो हमने सिंपली ये एंगल फाइंड करने के लिए देखिए क्या किया है, सिंपली वही स्ट्रेटेजी यूज़ की है। यहाँ पे हमारे बेस है, ये परपेंडिकुलर है, या हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/y बन गया, तो दैट इज माइनस साइन साई, क्योंकि नेगेटिव साइड है, नेगेटिव अप्रोच कर रहा है, दैट इज नोन एज -1, यहाँ पे -1 है सपोज करते हैं, ठीक है, -1 0 है, ठीक है। तो ये माइनस साइन साइन इसका आ गया, और ये cos साइन जो कि आपका टुवर्ड्स दिस एक्सिस रोटेशन है, ठीक है। अब हम कुछ ज्योमेट्रिकल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से कुछ ज्योमेट्री देखना चाहेंगे। रिफ्रैक्शन हो रही है, कुछ रिफ्लेक्शन हो रही है, और उसकी जो है ज्योमेट्रिकली किस तरह मैप हो रहा है। सपोज कर लें, देखें कोई भी, सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर रिफ्लेक्शन हम किस तरह डिफाइन करते हैं एनालिटिकल इसमें लीनियर अलजेब्रा में, देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पॉइंट है और ये नीचे लाइन है, ठीक है, तो इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी, यहाँ पे उसकी रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। अगर ये पॉइंट है हमारे पास, इसकी प्रोजेक्शन, जिसको प्रोजेक्शन भी हम कह सकते हैं, तो वो कहाँ पे होगी, सिंपली ये कॉलम है, ठीक है। तो इसकी जो है कॉम्प्लीमेंट है, इसकी प्रोजेक्शन या इसकी रिफ्लेक्शन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बात कीजिएगा, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्रिकली हम किस तरह फाइंड करेंगे। ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये उसकी ज्योमेट्री है, ठीक है। हमें एक पॉइंट है 0 1, दूसरा है 1 0, तो इसकी जो ये यूनिट स्क्वायर ये फॉलो कर रहा है, दैट इज दिस, ये जो हाईलाइटेड है ये यूनिट स्क्वायर आपकी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। अब देखें इसकी हमने ये चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह फाइंड करते हैं। ये हमारे पास E1 है, ये E2 है, और ये हमारे पास उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने की कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं, ठीक है। अब देखें रिफ्लेक्शन थ्रू x1 एक्सिस किस तरह होगी। ये देखें, ये x एक्सिस है, ये x1 एक्सिस है, टुवर्ड्स नेगेटिव हो रही है, ठीक है। तो ये जो है ये यूनिट स्क्वायर ऊपर था, दैट इज अब नीचे आ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रही है, कहाँ से, ऊपर से नीचे आ रहा है, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो है कुछ मैथमेटिकल अगर आप एनालिसिस करना चाहें
तो इसकी जो है मैथमेटिकल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगी, दैट इज इसको अगर हम देखना चाहें दैट इज x1 माइनस x2, ठीक है। ये हमारी ज्योमेट्रिकल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स है, देखें 1 0 1 0, ठीक है। 0 माइनस 1, यहाँ पे क्या है 0 माइनस 1 कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ रिफ्लेक्शन थ्रू यूनिट स्क्वायर की इस तरह हो रही है, ठीक है। x2 एक्सिस के हवाले से हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये यूनिट स्क्वायर था, ठीक है। ये x1 से अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो यूनिट स्क्वायर कहाँ मैप होगा, 1 इस पॉइंट पे होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 0 1 0, ठीक है। अब ये यूनिट स्क्वायर की रिफ्लेक्शन हो रही है। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह बनेगी, दैट इज -1 0 0 -1। अगर इसको t ऑफ x इक्वल टू a ऑफ x के बराबर लेना चाहें तो दैट इज इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आप x2 एक्सिस की अगर बात करें इस चीज़ की, देखें ये हमारे पास यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और x1 के, x2 पे हमारे पास क्या है 0 1, x1 पे क्या है 1 0। इनकी रिफ्लेक्शन आपस में ऐसे ही होगी, ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यानी ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स किस तरह बनेगी 1 0 0 1, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन थ्रू x2 माइनस x1, जो x1 है ये माइनस है, यानी -1 0 0 -1, यानी ओवरऑल जो है इसकी x2 और x1 नेगेटिव टाइम्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये इस तरह कर रहा है, ये इस तरह कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो इसकी रिफ्लेक्शन यूनिट स्क्वायर इस तरह बनेगा, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 0 -1 -1 -1 0। ये आपकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की जो है कुछ इस तरह बनेगी। अच्छा, पॉइंट्स की अगर ओरिजिन के थ्रू हम रिफ्लेक्शन देखना चाहें तो हमारे पास यूनिट स्क्वायर इस तरह बनेगा, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 -1 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -1 0, ठीक है। तो इनका जो है यूनिट स्क्वायर कुछ इस तरह बनेगा और इनकी जो है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स वो कुछ इस तरह बनेगी। ये -1 0 0 -1, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। इसको मजीद मैं इस तरह लिख सकता हूँ E1 E2। ओके, अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन देखना चाहें तो देखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन क्या है छोटा हो जाना, एक्सपेंशन क्या है बड़ा हो जाना, ठीक है। तो इस वजह से जो ग्राफ है यहाँ पे 0 1 K 0 एक्सपेंशन हो रही है, क्योंकि K की वैल्यू क्या है 0 लेस देन K लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है एक्सपेंशन हो रही है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है K 0 0 1 0 1 K इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे देखिएगा एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो अगर आप मैट्रिक्स देखना चाहें दैट इज K 0 ये और ये 0 1, ये चीज़ है, ठीक है, बनेगी। अच्छा, इसके लिए देखें ये वर्टिकल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा जो x है दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमारे पास कुछ मैट्रिक्स के साथ ये जो एक्सपेंशन हो रही है यहाँ पे देखें यहाँ तक जा रहा है 1 0 तक जा रहा है और यहाँ पे 0 टाइम्स k है, k क्या है नीचे हो रहा है, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो है हमारे पास कुछ मैट्रिक्स इस तरह बनेगी, दैट इज यहाँ पे बनेंगे 0 टाइम्स k
ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1 0, ठीक है, हमारे पास कुछ जो एक्सपेंशन हो रही है 1 0, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये दूसरी पॉइंट है, तो हमारे पास ये क्या बने 1 0 और ये 0 के, ठीक है, के है यहाँ पे, ठीक है, के इज, सो के इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सपेंशन हो रही है, ठीक। अब यहाँ की बात करना चाहें तो हम किस तरह कर सकते हैं, देखें ये हमारे पास है 1 0 0 के, कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कुछ इस तरह होती है यूनिट स्क्वायर के हवाले से। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। शेयर्स हमारा बेसिकली क्या होगा है, शेयर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारे पास कुछ डायगोनली, यानी कुछ इस तरह टुवर्ड्स ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्शन जिस टाइप होती है, यानी कुछ जो है ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट से शिफ्ट करना, और कुछ जो है वो जो है इस फॉर्मेट में जो है इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना, उसको शेयर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अगर के हमारे पास 0 टाइम के अगर हमारे पास 0 हो, ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, वाई एक्सिस पे 0 1 बनेंगे और इस पे 1 0 बनेंगे, और के जो है बीच में ये जो है हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, टुवर्ड्स की, ठीक है। तो इसके हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह बनेगी 1 0 के 1, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं, ये वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल शेयर्स है, ठीक है। अब देखें इसमें भी सेम हमारे पास के लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो हमारे पास ये के यहाँ टाइम इस टाइम शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे जो के बनेगा दैट इज के, यहाँ पे के की वैल्यू है विच इज लेस देन 0, तो हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह बनेगी 1 0 के 1, ठीक है, के की कोई पर्टिकुलरली वैल्यू होगी, ठीक है। और जो है अगर हम वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास एक्सेस पे क्या है 0 1, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। और वाई एक्सेस पे क्या है 1 के, दैट इज 1 के, ये हमारे पास जो इसकी वर्टिकल जो है हमारे पास कुछ इस तरह होगी, ठीक है। और इसके बाद हम जो है हॉरिजॉन्टल जो है वर्टिकल मजीद एक जो है शिफ्ट देखेंगे, तो ये हमारे पास 0 1 है और ये हमारे पास 1 के है, ठीक है। तो एक्सेस अपवर्ड हो रहा है टुवर्ड्स के टाइम्स, दिस इज के, यहाँ पे के की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है 1 के, ठीक है, और ये जो है 0 1, दैट इज 0 1। प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन हमारे पास एक होता है x1 एक्सिस पे और दूसरा होता है x2 एक्सिस पे। देखिए ये हमारे पास क्या है x1 एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है x2 एक्सिस है। ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट्स है और यहाँ पे 1 0। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ कर रही है टुवर्ड्स x1 एक्सिस कर रही है, ठीक है। तो इसके मैट्रिक्स इस तरह बनेगी 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। इसी सिलसिले में अब हमारे पास एक दूसरा प्रोजेक्शन अगर x2 पे है, ये तो है हमारे पास x2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह प्रोजेक्शन हो रही है, तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 1 0 0, दैट इज 0 0 0 1। एक प्रॉब्लम है, इसमें कहा गया है अज्यूम दैट टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी फाइंड करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी फाइंड करना है। पहले केस में क्या हो रहा है, टी इज वर्टिकल शेयर ट्रांसफॉर्मेशन।
यानी जो E है हमारे पास वर्टिकल शेयर ट्रांसफॉर्मेशन है, E को मैप्स कर रहा है E1 माइनस 3E2 पे, और E2 को अनचेंज कर रहा है। देखें E ऑफ E1 हमारे पास क्या है, E1 माइनस 3E2, ठीक है। E1 क्या है 10, E2 क्या है 01, ये फार्मूला है E1 माइनस 3E2 देखिए इसको कुछ नहीं हुआ, 1 माइनस 3 इसमें चेंज आया, ठीक है। 3 माइनस इसको जो है इस तरह हो गया ऐसे कुछ चेंज आया, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई दैट इज़ 1 माइनस 3 0 1, ठीक है। और इसी सिलसिले में 2 जो है हमारे पास, ये देखें 2E2 प्लस 2E1, ठीक है। हमारे पास क्या है ऑप्शन, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0 1, ठीक है। तो 2 1 0 इसको चेंज हो रहा है, ठीक है। 2 1 ये 0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। E ऑफ X हमारे पास जो सिस्टम बन रहा है वो दैट इज E ऑफ E1 बन रहा है, और ये हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह बन रही है। Now we are going to discuss about the one-to-one and onto linear transformation. A mapping Rn to Rn is said to be onto if each B in Rn is the image of at least one X in Rn. At least one X in Rn should be in Rn. This is known as onto. कहने का मतलब ये है, यानी एटलीस्ट एक जो x है इस वाले डोमेन में वो मस्ट भी यहाँ पे उसकी इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहेंगे, इसको आप ऑन टू कहेंगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास है 1-to-1, यानी 1-to-1 फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एटलीस्ट, ठीक है। ये कहा गया है एटलीस्ट, यहाँ पे एटमोस्ट मैक्सिमम 1x जो है Rn में होना चाहिए, यानी कम से कम अगर एक x है Rn में तो ये आपका क्या बना, ये आपका बना ऑन टू। अगर मैक्सिमम एक एटमोस्ट 1x इन Rn, मैक्सिमम एक एटमोस्ट जो है आपके पास x जो है Rn में होना चाहिए, तो वो आपका जो है 1-to-1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। देखें अब यहाँ पे देखें Rn पे है, यहाँ पे मैक्सिमम एटमोस्ट 1x इन Rm, यानी हर पॉइंट की एक अलग जो है x बन रहा है, तो ये 1-to-1 कहेगा। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 1-to-1, 1 पॉइंट इसमें तो 1 उसमें, यानी यहाँ पे कम से कम एक इमेज बन रही है एक वेरिएबल से, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो हर चीज़ जो है अलग अलग, यानी एक ही चीज़ में मैक्सिमम चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट पे एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट Rm में हो, एक पॉइंट Rn में हो, ठीक है। सिमिलरली फंक्शंस की तरह है 1-to-1 और onto फंक्शंस की तरह है। ये एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, जिसका जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है whose standard does T map on R4 to onto R3। क्या पूछ रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसमें R4 से R3 तक हो रही है, ये onto है या 1-to-1 मैपिंग है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखें ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स गिवन है A मैट्रिक्स, ठीक है। और ठीक है, हमने जानते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनती है X इक्वल टू B के बराबर है। B हमने कोई भी जो है B1 B2 B3 कोई भी आर्बिट्रेरी वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो X3 है X4 है, X4 5X4 इक्वल टू P3। X4 का क्या हमारे पास बनेगा P3/5, ये X4 की वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली हम इसमें देखना चाहेंगे
ये जो है हमारे पास कुछ बन रहा है 2x2 इक्वल टू x3 प्लस 3x4 प्लस b2, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन x4 तो है हमारे पास, x3 आपको क्या बना, ये 3 वेरिएबल्स बना। तो x3 में हमने जो है वैल्यूज देकर, ठीक है, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट इज हमारे पास कुछ इस तरह आएगी x3 प्लस 3x4 को जो है हमने मल्टीप्लाई किया b3/5 से प्लस b2, ठीक है। तो हमारी जो x3 की वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू आएगी, दैट इज डिविजिबल बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस तरह से हमारे पास कुछ x2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी। अभी देखते हैं x1 के हवाले से। x1 में किस तरह हमारे पास बनता है, x1 जो हमारे पास आएगा इक्वल टू 4x2 प्लस 8x3 प्लस 1 x4 प्लस b, ठीक है। कुछ इस तरह बनेगी। अच्छा, तो यहाँ पे x1 की जो वेरिएबल आएगी, अब इसको देखना है, x1 भी हमारे पास जरूर कुछ न कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अब फ्री वेरिएबल्स आया, मतलब क्या है, यानी एटलीस्ट एक कम से कम एक वेरिएबल जो है मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। अब x3 है, कोई भी हम अपनी तरफ से वैल्यू दे सकते हैं इस फ्री वेरिएबल में। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू मैपिंग, ठीक है। 1-to-1 मैपिंग नहीं हुई, इसको कहेंगे हम ऑन टू मैपिंग। दो थ्योरम हम पढ़ना चाहेंगे। एक थ्योरम है हमारे पास, अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है Rn से Rm में, ठीक है, और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ये 1-to-1 मैपिंग होगी अगर इक्वेशन t(x) इक्वल टू 0 को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यानी जो इक्वेशन हमारे पास होगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो होमोजीनियस आ गई, ठीक है, और जो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गए वो दैट इज नॉन ट्रिवियल। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा थ्योरम क्या है हमारे पास, दूसरे थ्योरम में कहा गया है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है R से Rm में, Rm से Rm में कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और A हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। तो अगर T मैप्स होगा R, T ट्रांसफॉर्मेशन में मैपिंग होगी Rn से ऑन टू Rm, Rn से ऑन टू Rm, अगर कॉलम्स ऑफ A स्पैन R, यानी जो कॉलम्स A की कॉलम्स होंगे वो स्पैन करते होंगे। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, स्पैन यानी ओवरऑल विद इन द बाउंड्री आ जाना, ठीक है। किसकी बाउंड्री में आना ना, स्पैन किसके स्पैन में आना, Rm के स्पैन में आना, ठीक है। तो ये चीज़ हमने एक मतलब फिर से देखनी होगी, कॉलम्स ऑफ A स्पैन Rm, यानी उसके Rm के स्पैन में हो कॉलम्स, तो दैट इज नोन एज ऑन टू, ठीक है। अच्छा, T ट्रांसफॉर्मेशन 1-to-1 किस सेंस में होगी, अगर कॉलम्स ऑफ A आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी हर कॉलम जो है एक आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। तो इसको हमने मैथमेटिकल फार्मूला में ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में होती है, B के बराबर होती है, ठीक है। ये हमारे पास बिलोंग करती है आर्बिट्रेरी स्पैन ऑफ कॉलम्स A। एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है x0 से x0, ठीक है। हमारे पास क्या है, 3x1 5x1 x2 5x1 प्लस 1x1, ठीक है, और हमारे पास x2 क्या है, 1
3, ठीक है। और हमें कहा गया है कि ये टी जो है 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या टी मैप हो रहा है R2 से RM में, ठीक है। तो हमने सिंपली ये स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है। और A1 A2 को ये हमने नोट किया है, अगर RM में स्पेस है तो इसका मतलब क्या है कि ये स्पेन ऑफ वेक्टर्स है। ये एक थ्योरम जो हमने पढ़ा उस मुताबिक जो है स्पेन में है, ठीक है। तो सिंपली A1 A2 क्या है, स्पेन ऑफ R3 है, ठीक है। तो सिंपली हमने अच्छा इसको जो है 10 की अगर देखना चाहें तो ये 351 बन रहा है। सिमिलरली अगर हम 20 को देखना चाहें तो दैट इज हमारे पास 173 इसी तरह बन रहा है, ठीक है। अच्छा अगर B हम यहाँ पे कोई भी जो है B1 B2 B3 कोई भी आर्बिट्रेरी x ले रहे हैं, क्योंकि ये B1 B2 B3 है। अच्छा अगर हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट आ रहा है, ठीक है, सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो मैपिंग जो है वो हमारे पास ऑन टू होगी। सिस्टम कंसिस्टेंट होता है तो मैपिंग ऑन टू पे होती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास इसकी इमेज आई है, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन के मुताबिक आ रहा है, ठीक है। यानी Ax = 0 इट मीन्स ट्रिवियल सॉल्यूशन है ये, ठीक है।